So let's begin. Starting with the ovaries, all almond shape attached to the abdominal wall by ligament that is called mesovarium. Okay, so this part, ये जो है वो ligament है, this one. Okay, so ये ligament के through attached रहती हैं, that is called mesovarium, and further they are almond shape, बादाम जैसे शेप की होती है, not exactly spherical or round. Okay, and another thing regarding the ovary is that these ovaries are designed to work alternately for each and every month. वो designed ही है उसी तरीके से, and they are these ovaries are comparatively, अगर इसका आप साइज देखोगे तो 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसका लेंथ होगा, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड है. ओके, एंड considered as the one a very essential sexual organ for or the reproductive organ of the female's body, and then they both of them are followed by the fallopian tubes, जिसको आप ओविडक्ट्स भी बोल सकते हो, मुलेरियन डक्ट्स भी बोल सकते हो, अलग अलग नेम्स हैं इस डक्ट्स के. सो फनल शेप्ड है, दीज डक्ट इज अ फनल शेप्ड वन, एंड ये जो इसके प्रोजेक्शंस है, सी funnel shaped and it has finger like projections, they are called fimbriae, इनको हम fimbriae बोलेंगे. Okay, and the one this wider part of this particular area is called ampulla, और यही जो जब नैरो हो जाता है इसको हम बोलते हैं isthmus. Okay, so description is over here. ठीक है, so funnel shaped infundibulum edges है, have fimbriae that is finger like projections. एम्प्यूला जो है उसका वाइडर पार्ट है, और जब वो नैरो हो जाता है लास्ट पार्ट जो यूट्रस की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड isthmus. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? Okay, fine. Then you have uterus, hystera, worm, जो भी बोलना चाहो, anything is clear. Worm, basically we say at the time of pregnancy you use this word. Uterus is something which is generally utilized for this region. So inverted pear shaped होता है, 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथ इसकी होती है जनरली. Okay, so and it is situated behind the urinary bladder, जो bladder wall है, bladder है उसके पीछे होता है, behind the bladder. So and wall of uterus have 3 layers, that is perimetrium, myometrium and endometrium. So 3 walls are there. So basically अगर आप ये structure ध्यान से देखते हो, so this region जो outer वाली रहती है that is called perimetrium. Then you have the central one that is myometrium, and then you have the endometrium at the center. और ये सारी walls जो है वो इस जगह पर बहुत thick है, but when it reaches to the cervix they become thin in nature, comparatively thin हो जाती है. So just see to this. ठीक है, so पेरीमेट्रियम जो आउटर है, मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स, मायो जब वर्ड मायोफाइब्रल्स या मायो यूज होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट मसल्स. सो थिक है, मेम्ब्रेनस है, स्मूथ मसल्स है, थिक एट फंडस एंड थिनेस्ट एट सर्विक्स. सो दिस रीजन, ये जो थिक रीजन है इसका, सी टू this thick region is called fundus, इसको हम fundus बोलते हैं. So this part you should be clear with, and see this, and thinnest जब cervix के पास आ जाती है ये walls तो cervix पर एकदम thin हो जाती है. Last the innermost is called endometrium,
which is highly vascularized mucosal lining of, मतलब highly vascularized, मतलब blood vessels और ये सबसे filled रहती है endometrium wall. So basically endometrium wall जो है वहीं पर ये ओवा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है इन द endometrial walls ओनली. ओके, और जब ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले एंडोमेट्रियल वॉल्स ब्रेक डाउन होती है. दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द मेंसेस द ब्लड विल बी रिलीज्ड आउट. Okay, so that is how this uterus is designed. And the thing regarding this uterus, you have seen that is it is behind the bladder. वो uterus की जो position है that is behind the urinary bladder. So just see this, that if this is a bladder and this is where your uterus is lying. So इसीलिए जब women's females में अगर आप यूरिन अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप पास आउट नहीं करते हो तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द यूट्रस अ लॉट. ओके, और वो प्रेशर की वजह से आपको जो है आपको पेन फील होता है लोअर बॉडी रीजन में. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट बिकॉज देर आर ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेस especially for females to urinate. So at that time what is the situation is the it will just pressurize the uterus a lot and that will cause a pain in that particular region. और ऐसी प्रैक्टिस अगर कंटिन्यूसली फीमेल्स में अगर होती है, अगर वो लोग करते हैं तो दैट लीड्स टू द कैंसर, दैट लीड्स टू यूट्रल कैंसर, or that leads to the damage in the uterus muscles and all that can lead to the dysfunctionality of the uterus even. Okay, so that should not be practiced for a longer duration also, and for the continuous times it should not be done. If you feel to urinate, please move out and find a place to urinate anyhow and do urinate please, because holding it for a longer duration will cause a lot of damage in your uterus area. Understood this part? Clear beta? Okay, and then you have the cervix which is the narrow entrance. मतलब अगर आप बाहर से enter होते हो तो cervix is the entry for the uteral region. And then you have the vagina which is a muscular tube. Vagina थोड़ा बड़ा region है, 8 to 10 centimeter long है, and its pH is 4.0. that means quite acidic in nature. अच्छा, do understand this, that how the nature is being programmed. हमने स्पर्म्स पढ़ा, सेमेन पढ़ा. सेमेन जो है वो क्वाइट अल्कलाइन होता है, ठीक है, तो स्पर्म्स जो है वो अल्कलाइन फ्लूइड में प्रिजर्व्ड रहते हैं. The thing is when the sperm are released in this particular region, so vagina का जो pH है वो इतना ज़्यादा एसिडिक है स्पर्म्स के लिए कि out of these millions 50% will die in this area only. वो वजाइना में ही मर जाते हैं क्योंकि वो pH को बेयर नहीं कर सकते हैं इतने ज़्यादा एसिडिक pH को. तो 50% of sperm will be dead over there at that place only. So that is how the whole system is programmed, and this is how the, क्योंकि sperms का नंबर बहुत ज़्यादा है तो उसको नेचर कैसे रिड्यूस करेगा. why the only one sperm is reaching to that place. So that is the thing is ये जो चीज़ है वो आपको समझनी है कि ये जो पूरा सिचुएशन है, ये पूरी स्पर्म को ओवा तक पहुंचाने की. सो द फीमेल बॉडी इज डिजाइंड लाइक दिस दैट इट विल चूज द हेल्दीएस्ट एंड द वन विच इज द फिटेस्ट वन आउट ऑफ देम. अंडरस्टूड दिस पार्ट? आर यू ओके? बिकॉज जो पीएच ही बेयर नहीं कर सकता है वो स्पर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो और वो बेस्ट है ही नहीं, तो वो तो वजाइना को क्रॉस करके वो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं. आया समझ में? सो द थिंग इज दैट्स हाउ नेचर इज सिलेक्टिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वन and just deleting with those who are the weakest.
So out of all these millions of sperms, those who are which are being produced, 50% will cut off at the entry level only. Okay, that is the vagina pH. It will not be built. And this acidic pH of the vagina, because being girl, being a female, you should know your body very thoroughly. And आपके जो फैमिली में जो आपके और भी जैसे मम्मी या आंटी या दादी या जो भी आपके सिस्टर्स या जो लोग हैं, just tell them that this particular pH has to be maintained, and that is very much important, because what happens that by using certain soaps or certain type of things which for washing and all that, that may cause a little bit of change in the pH, and that lead to the itching, that lead to the infections, that lead to the several casualties sometimes. Okay, so that part you have to understand, that vagina has to maintain its pH very strictly. Okay, so this is how this vagina is programmed, and that is a muscular tube 8 to 10 centimeter long. Now see this, as we know that this cervix ये बहुत narrow region है, but during the child birth ये cervix जो है वो अगर नॉर्मल डिलीवर बच्चा होता है, जब बेबी इज डिलीवर्ड नॉर्मली, एट दैट टाइम द हेड ऑफ द बेबी, ओके, वो जो साइज का होगा, सर्विक्स के मसल्स जो है वो उतने ही ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं. दैट इज व्हाट द इलास्टिसिटी ऑफ द सर्विक्स इज. और थ्रू सर्विक्स, दैट मीन्स थ्रू दिस रीजन, okay, the baby will come out through this particular part, cervix. cervix के बाद vagina के through बच्चा जो है, बेबी जो है, through head region it will come out. तो हेड अब जब बाहर आता है, उसके बाद हैंड्स, लेग्स जो है वो इस एरिया से स्लोली एंड स्टेडली स्मूथली जो बॉडी है वो रिलीज कर देती है. बट सर्विक्स जो आप एरिया देख रहे हो, सी इट्स टू नैरो, बट इट कैन स्ट्रेच अप टू द साइज ऑफ द बेबीज हेड. इतना वो स्ट्रेच हो सकता है टू रिलीज द बेबीज आउट. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Okay, fine. Then external genitalia is there. Mons pubis, that means the outer skin covered with skin, and जो fluffy soft region होता है आपका external reproductive, that is covered with skin and pubic hairs. Then labia majora and minora. Last class I must have told you that two lip-like structures which are enclosing all the openings, they are called labia majora and labia minora, and then called clitoris. Clitoris is something which is called reduced penis. हाँ, उसका फंक्शन enlargement या urethra consist नहीं करता है, but it is something that is very much similar to the penis of the males. Okay, that is what regarding the external genitalia you should understand. Now there are accessory, हमारे जो body में accessory glands भी है जो as a sexual parts वो करते हैं, but they are not the part of the reproductive system, they are not taking part in the reproduction also, but they are called जो है वो extra है. जैसे mammary glands. Mammary glands जो है वो आफ्टर डिलीवरी दे आर यूज टू फीड द चाइल्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, बट उसका जो डेवलपमेंट है वो प्यूबर्टी से रिलेटेड है. सो दैट स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग दैट वी विल बी लर्निंग आफ्टर दिस, once we will finish this part. Okay, so see this, let me you have gametogenesis word नहीं होना चाहिए यहाँ पर, oogenesis होना चाहिए. Okay, this is something which is typed wrong. Okay, this should be, I have shown you the oogenesis versus spermatogenesis. ठीक है, अच्छा, इन दोनों को कलेक्टिवली हम गैमेटोजेनेसिस ही बोलेंगे. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गैमेटोजेनेसिस, एनी ऑफ द गैमेट कैन बी सेड, मीन्स आप चाहे उसकी बात करो,
स्पर्म की चाहे एग की बात करो, ठीक है। सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, सो सी दिस, ये जो पार्ट है स्पर्म वाला, हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस इज बीइंग डन। सो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है थ्रू माइटोसिस। सेम यहाँ पर oogenesis में भी देखो, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, meiosis will वन जो होगा वो अकर होगा and that lead to the formation of secondary spermatocytes and here secondary oocyte। but see this, यहाँ पर जो दूसरा है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, वो oocyte नहीं बनता है, ठीक है। now see this one स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 की वजह से ये जो सेल है ये दो, देन अदर फर्दर टू सेल्स, ऑल ऑफ देम विल बी क्लासिफाइड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो है वो ही आगे चल के स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ माने जाएंगे, क्योंकि उनका टेल वगैरह सब जनरेट हो जाएगा, तो यही क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग दैट जो सेकेंडरी oocyte है वो ऊटेड बनता है छोटा सा, और वो ऊटेड जो है बिकॉज मियोसिस 2 हुआ है यहाँ पर, सो ड्यू टू दिस मियोसिस 2 द सेकेंड पोलर बॉडी विल बी फॉर्म। और पोलर बॉडी का फर्दर डिविजन नहीं होता है, इट विल स्टॉप ओवर ईयर ओनली, सो ओनली वन ऑफ द ओवा विल बी ऊटेड विल बी फॉर्म्ड, और ये ऊटेड मेच्योर होगा, डिफरेंशिएट होगा इनटू ओवा। सो दैट इज हाउ यू शुड कंसिडर। देखो कि होता है सब कुछ सेम है दोनों में, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, प्राइमरी सेकेंडरी दे आर फॉर्मिंग एंड देन दे आर डिफरेंशिएटिंग, प्रोसेस एंड डिविजन इज ऑल्सो सेम, दैट इज फॉर्म दिस प्राइम माइटोसिस हो जाएगा oocytes बनने और स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए, एंड देन मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2। बट द थिंग इज ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर सभी के सभी जो है वो सेल नहीं बन रहे, दीज आर कॉल्ड पोलर बॉडीज, एंड दीज पोलर बॉडीज जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा, दोनों में डिफरेंस समझ आया? यस ओके। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली फर्स्ट। तो ये पूरा प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस है, बट एग के साथ होगा तो oogenesis, और स्पर्म के साथ होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, बस इतना डिफरेंस है इन दोनों में, दैट पार्ट यू शुड नो। ओके, बट नाउ सी दिस, ये ओवम जो फॉर्म हुआ है ना, इसकी स्टोरी थोड़ी और ज़्यादा इलाबोरेट करनी पड़ेगी, इतना इजीली ओवम जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल see to this that ठीक है, दिस इज व्हाट यू से इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। अब आपको बेटा थोड़ा सा जो है वो ध्यान इस पर अच्छे से लगाओ, ये चीज हो रही है आपकी ओवरी में, ठीक है, ये जो है ओवरी में ये चीज फॉलो हो रही है। अब कैसे ये पूरा ओवरी जो है वो पूरे मंथ किस तरह से पूरा प्रोग्राम्ड है, दैट पार्ट यू विल बी ऑब्जर्विंग। सो सी टू दिस दैट okay, see, अब shall I zoom the picture कि इतने में मैनेज हो दिख रहा है आपको बेटा?
दिख रहा है ना, so that I can write over here, that's what I am thinking. Will it be okay अगर zoom नहीं करूँ तो? Yes, ma'am. Okay, fine. So see this that ये जो पूरा ये ओवरी का जो फंक्शन मतलब सिनेरियो है, इट इज़ नॉट लाइक जो एक मतलब वंस इट इज़ स्टार्टेड एंड ये सब चीज़ें फॉलो हो रही है. इट टेक्स द टाइम, दैट मीन्स होता है. ठीक है. सो द थिंग इज व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग मतलब व्हेन यू वर इन योर mama's womb, at that time this function is being started. ठीक है. अब ये जो पूरा जो सिस्टम है बेटा, ये वंस यू आर इन योर मदर्स वम एट दैट टाइम वो स्टार्ट हुआ. उसके बाद टिल 13 या 14 ईयर्स तक वो अरेस्टेड रहेगा और 14 ईयर्स के बाद आपको जो एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आप गेन करते हो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड ऑल दैट, सो द थिंग्स विल स्टार्ट एट दैट टाइम. बट व्हाट हैपन्स जब आप मदर्स वॉर्म में होते हो, क्योंकि being a girl your ovary is formed at that time only. Okay, so at that time how these all these eggs are being programmed in your ovary, that part you have to consider. So see this that these primary first of all जो हम सबसे पहला सेल फॉर्म करते हैं दैट इज प्राइमरी फॉलिकल. अभी हम सेल नहीं ओवा या ओव्यूल या ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग द टर्म द दैट इज कॉल्ड फॉलिकल. ठीक है. सो दीज ऑल दीज प्राइमरी मतलब oocyte भी बोल सकते हो, प्राइमरी oocytes द वन विच इज बीइंग फॉर्म. ओके. दीज प्राइमरी जो oocyte है या प्राइमरी जो फॉलिकल है, इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ये एक तरीके से कवर्ड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है. एंड अराउंड 2 मिलियन ऐसे फॉलिकल जो हैं वो आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं. सो 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल ओके. ये आपकी बॉडी में फॉर्म होंगे कब? जब आपका बर्थ भी नहीं हुआ तब. ठीक है. सो दीज प्राइमरी फॉलिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जस्ट बिफोर बर्थ. अभी आप बॉर्न भी नहीं हुए लेकिन आपकी ओवरी जो है वो 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बेयर करती है. सो दिस इज ऑल बिफोर बर्थ. प्राइमरी फॉलिकल ये है ओवरी का सबसे पहला स्टेज. बट इसके बाद जो है वो डेवलपमेंट में पूरा साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं. आउट ऑफ ऑल दीज 2 मिलियन फॉलिकल्स ओनली एंड ओनली 450 फॉलिकल्स जो होते हैं वो खुद को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. Is this part is clear? Okay. So that is how see the reduction कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसके बाद रिडक्शन कट लेवल देखो 2 million and then it remains in only in hundreds, that is 450. Okay. Now this particular thing is these primary follicle will develop into the secondary and then the tertiary. जब ये टर्शरी फॉलिकल जब फॉर्म हो रहा है एट दैट टाइम यू जस्ट सी दिस दैट कैन यू सी दैट सेल मास जो है वो एक जगह पर जाकर अटैच हो गया है और दिस पार्ट इज बीइंग एम्प्टी. कैन यू सी इट? हियर. Okay. Now see this that once this follicle is formed, okay,
देन दीज फॉलिकल्स विल बी रीचिंग मेच्योरिंग, अब अपना वो साइज को थोड़ा सा बड़ा करता है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो इट इज रीचिंग टू दिस ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो सबसे मेच्योर स्टेज है इस फॉलिकल की। ठीक है, ये प्राइमरी जो oocyte फॉर्म हुआ था उसका सबसे मेच्योर स्टेज है ग्राफियन फॉलिकल। जो फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनेगा वो ही आगे ओव्यूलेशन के लिए प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये जो अंदर जो है ये ओवम है इसके अंदर, और ये जो एरिया पूरा उसको कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। नाउ दिस ग्राफियन फॉलिकल्स जो है दे विल दे आर ट्रैवलिंग, ये जो पूरे फॉलिकल्स हैं दे विल ट्रैवल टू दिस रीजन slowly and they will time to get mature and all that. So similarly this particular girl, okay, or this particular ovary will be having this particular stage when it will be ready to release the ova. ये ovulation है, देखो ova release हो रहा है यहाँ से, can you see this? Yes ma'am. Okay, now दिस पर्टिकुलर इज बीइंग, ये जो ओवा है रिलीज, उस टाइम पर आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो कुछ हॉर्मोन्स इस चीज को ट्रिगर करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मीन्स वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तुम ओवा को रिलीज कर दो। नाउ वंस दिस ओवा इज बीइंग रिलीज्ड बाय एंड कॉट बाय द दीस फैलोपियन ट्यूब्स, अब उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बनता है दैट इज एम्प्टी, सो इट एक्ट्स लाइक अ कॉर्प्स। जैसे एक बॉडी होती है जो मर चुकी है, बस उस तरीके से ये जो पूरा ये कवरिंग है दैट विल बी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Okay. Okay. Okay, fine. So this corpus luteum, corpus का नाम क्या है? कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी ना, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी होता है। इंग्लिश में पढ़ा होगा ना। ओके, सो कॉर्प्स मतलब अ डेड बॉडी, सो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो नाम उसी से गेन हुआ। दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल बी ओवर हियर। नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो स्लोली 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 डीजनरेट होता है एंड वंस इट विल डीजनरेट इट विल बी गॉन। अब ये चीज ध्यान दो बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट नहीं होगा इन द पर्टिकुलर ओवरी, जब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होगा तब तक दूसरी ओवरी जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी टू रिलीज द ओवा इन द नेक्स्ट मंथ। सो दैट इज हाउ दीज दे आर ट्रिगरिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर पर्टिकुलर रीजन। आपने आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड दैट पार्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा ना आपने आपके 11th में? हॉर्मोन्स पढ़े होंगे उसमें। ठीक है, तो हॉर्मोन्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, ये सब हॉर्मोन्स याद है? ओके, सो ऑल दीज हॉर्मोन्स विल बी फंक्शनिंग ओवर हियर। वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, सो दैट पार्ट यू विल बी वॉचिंग आउट ओवर हियर। ठीक है, नाउ सी हमें ये सीखना है
कि जब भी जैसे ही फर्टाइल एक फीमेल जो है वो फर्टाइल ईयर में एंटर होती है, मतलब जैसे ही प्यूबर्टी आता है उस टाइम पर ऑल दीज प्राइमोडियल जो प्राइमरी फॉलिकल हैं ये दे विल डेवलप इनटू द मेच्योर फॉलिकल नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ये हर मंथ का ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जब भी ये फॉर्मेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल की, अब प्राइमरी oocyte जो इसके अंदर oocyte है प्राइमरी, दैट विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द एग। अब वो एक ओवा का फॉर्म लेना शुरू कर देता है, फ्रॉम दिस पॉइंट to this point to this point then this point it will start behaving as ova now, okay। and all these particular oocyte जैसे ये बनेगा वो ये जो प्राइमोडियल सेल्स हैं ये बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर फॉलिकल, ठीक है। नाउ दिस व्हाट हैपेंस दैट एट दिस टाइम जब ये चीज हो रही है, ये जब स्टेज पार हो रहा है, सेम टाइम यूट्रस इज ऑल्सो फंक्शनिंग। यूट्रस क्या कर रहा है, वो उसको पता है कि अब कुछ टाइम में ओवा रिलीज होगा कुछ डेज में, तो आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू गेट रेडी अकॉर्डिंगली टू टेक दैट ओवा इनसाइड मी। तो उधर क्या होगा, वो एंडोमेट्रियल वॉर्म जो है, वॉल्स जो है वो धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा, ठीक है। सो ऑल दिस रीजन, ये जो पूरे टिश्यू हैं ओवरी के, दे विल रिलीज द हार्मोन्स फॉर मैच्योरिंग दिस पर्टिकुलर फॉलिकल। नाउ दिस पर्टिकुलर फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उससे भी इन्फ्लुएंस होगा, एंड दिस पर्टिकुलर फॉलिकल हैज टू बी मैच्योर्ड एंड इट शुड रीच टू ग्राफियन फॉलिकल। जब 1 सेंटीमीटर जैसा डायमीटर ऑब्टेन कर लेता है तो वो मैच्योर कंसिडर किया जाता है, अंडरस्टूड। देन इट इज रेडी टू रिलीज। अब जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है वो फॉर्म हो गया है, and this it is ready to release like this. So see this, that whole situation of this particular thing, it will be classified in these hormonal situation. So देखो ऊपर जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, this part, this is inside the ovary it is happening, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, that is inside the यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है वो हम चीज देख रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये ओवरी और यूट्रस जब इन दोनों में ये चेंजेस आ रहे हैं तो हॉर्मोन्स में क्या चेंजेस हैं, दैट पार्ट वी विल बी सीइंग। सो दिस सी यूट्राइन साइकिल मतलब यूट्रस में जो हो रहा है, ओवेरियन साइकिल मतलब ओवरी में हो रहा है। साथ में इसमें बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा मेंटेन दिखाया है इस ग्राफ में, नो नीड, बट सी दिस हॉर्मोन्स। तो 2 सेट्स ऑफ हॉर्मोन्स आर देयर, ओवेरियन हॉर्मोन्स जो ओवरी खुद रिलीज करती है वो, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो। ये सारे हार्मोन्स मिलकर ये पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे प्रोग्राम करते हैं वो चीज हमको देखनी है। सो सी टू दिस दैट दिस पर्टिकुलर रीजन हियर वी विल लेट मी जूम इट, ठीक है। सो यू हैव द मेंस्ट्रुएशन फेज। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब मेंसेस हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं उस टाइम पर, कैन यू सी द ब्रेक डाउन ओवर ईयर। तो ये दिखा रहा है कि ये मेंसेस का पीरियड है, मतलब यहाँ पर पीरियड्स जो है अभी चल रहे हैं। एंड एट दैट टाइम ओवेरियन हार्मोन्स, दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं वो एकदम कम है, इवन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। पर्पल वाला जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है, येलो वाला जो है वो एस्ट्रोजन है। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो है वो एकदम डाउन है। सिमिलरली पिट्यूटरी हार्मोन्स भी उतने टाइम तक एकदम डाउन रेटेड रहेंगे। नाउ सी दिस दैट एज द टाइम प्रोसीड्स, सो फर्स्ट फेज शुड बी द फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिंग फेज। हम इसको प्रोलिफरेटिंग फेज भी बोल सकते हैं और फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा, ठीक है,
once the follicular state this particular period will start. Now how to calculate the days? ठीक है, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड, वो आपके मेंसेस का फर्स्ट डे है, ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ योर मंथ अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो दिस इज डे 1. ओके, डे 1 जो है, फर्स्ट डे जो है वो मतलब 0 0 1 2 3 और 0 से 7 days 5 days जितने डेज होता है वो मैनेज करो. सो सपोज 5 days इट इज देयर. सो टिल 5 days मेंसेस विल बी देयर ऑन 6th day. ठीक है, नाउ 6th day मेंसेस आर ओवर, पीरियड्स नहीं है. एट दैट टाइम द एस्ट्रोजन विल राइज. ठीक है, एस्ट्रोजन राइज होगा. वो क्या बताता है ये पर्टिकुलर यूट्रस को कि स्टार्ट फॉर्मिंग द एंडोमेट्रियल वॉल, इसको फॉर्म करना शुरू करो. एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी लिटिल बिट राइज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये भी थोड़ा सा राइज होना शुरू होगा कि भाई प्रिपेयर the uterus for the welcoming the new ova. So you should a little rise in the follicular stimulating hormone you can see. Okay, then all these days will be same, but slowly the estrogen will be rising, continuously rise कर रहा है. ठीक है, and at the 14th day, ठीक है, ये 28 days के बीच में बताया गया था. किसी को 32 days भी हो सकता है, किसी को 34 डेज भी हो सकता है, किसी का 30 डे हो सकता है, किसी का 29 डे हो सकता है, किसी का 25 डेज का साइकिल भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, बट 28 डेज जो है वो एक स्टैंडर्ड कंसिडर करके ये बताया गया. सो ऑन द 14th डे, अब 14th डे को दैट मीन्स दिस डेज आर रेडी टू रिलीज द ओवा. जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फॉर्म हो चुका है. देखो, सी दिस, कैन यू सी ओवर हियर? growing follicle, the graphian follicle is being formed. 14 डे आते आते तक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा. जैसे ही 14th डे आता है, ठीक है, उसके पहले एस्ट्रोजन देखो कितना राइज है टिल 14th डे. फिर वो ड्रॉप डाउन होगा क्योंकि अब ये जो पर्टिकुलर ओवा है उसको रिलीज करना है. रिलीज करना है उस टाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH बोथ ऑफ देम विल बी एट पीक. वो दोनों सबसे ज्यादा है. ठीक है, नाउ सी दिस, ओव्यूलेशन इज बीइंग डन. वंस दिस पार्ट इज बीइंग डन, सो सी टू दिस दैट एज दीज हार्मोन्स आर हैविंग देयर पर्टिकुलर पीक, वो उस पर हैं, और एट द सेम टाइम दीज वॉल्स आर ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड एंड हियर द फॉलिकल इज बीइंग बर्स्टेड एंड इट द ओवा इज बीइंग रिलीज्ड. ठीक है, सो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो एक साथ हो रही है, ये सारी आपकी बॉडी में, मतलब ओवरी में, यूट्रस में, ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ चल रही है. ठीक है, नाउ सी दिस पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन, ऐसे बोलते हैं कि फ्रॉम डे 12 टू डे 16 इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट फर्टाइल पीरियड. मतलब जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं, दोज हु आर प्लानिंग अ फैमिली, दोज हु वांट टू हैव अ चाइल्ड, they should have the sexual intimacy in this period. The reason is if the sperm is released at this stage, it has more chance to meet the ova as soon as possible. Is this part is clear to you, beta? Yes, ma'am. Okay, now see this. ये अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है. सो नो ओवा इन सब, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बस जैसे ही वो रिलीज हुआ तुरंत ड्रॉप डाउन हो जाएगा. एकदम कम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इट विल बी लिटिल बिट लेस. बट व्हाट विल बी राइजिंग इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये जो फेज है इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की जो पर्टिकुलर ये होगी क्वांटिटी आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, सो सी दिस, दैट फेज इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज. मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन जो है फेज, दैट विल बी कॉल्ड द ल्यूटियल फेज. दिस ल्यूटियल फेज जो है, इस टाइम ये जो प्रोजेस्टेरॉन और ये एस्ट्रोजन जो रिलीज होते हैं, दे मेक श्योर कि इफ स्पर्म इज देयर एंड बोथ ऑफ देम आर फ्यूजिंग, ओवा और स्पर्म जो फ्यूज हो रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर फ्यूज्ड जो चीज जाइगोट जो बनी है
उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जाइगोट जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा एज ओवा, सो दैट विल बी द मिसकैरेज फॉर द फीमेल। टू अवॉइड दैट द प्रोजेस्टेरॉन जो है ये अगर इफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा अकर्स एंड द प्रेगनेंसी इज बीइंग पॉजिटिव, देन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो पूरे के पूरे 9 मंथ्स दैट मीन्स 40 वीक्स तक है ना, वो पर्टिकुलर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होगा बॉडी में बहुत ज्यादा होगा उस मदर के अंदर। अंडरस्टूड दिस पार्ट? इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, क्लियर? Okay, now see this, all these hormones will be they are going down except progesterone and estrogen. Corpus luteum is slowly degenerating, धीरे धीरे degenerate हो जाएगा। once it will be degenerated, once it will be gone, then the next ovary जो है वो प्रिपेयर कर लेगी खुद को नेक्स्ट मंथ के लिए सेम साइकिल रिपीट करने के लिए, ठीक है। अगर दैट मीन्स सेम मेंसेस विल स्टार्ट, ये फेज स्टार्ट होगा, पीरियड्स विल स्टार्ट एंड देन ऑल दीज फेजेस विल कम अप, फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल, ये सारे फेज जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? बट इफ द प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत हाई है, सो व्हाट विल हैपन इज दैट दिस कॉर्पस ल्यूटियम ये जो है ये भी डिजेनरेट नहीं होगा, इट विल रिमेन लाइक दिस, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो FSH को प्रिवेंट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक के रखता है कि न्यू फॉलिकल रिलीज नहीं करना है, क्योंकि द फीमेल इज हैंडलिंग अ प्रेगनेंसी राइट नाउ। So corpus luteum will continuously triggering FSH for 9 months. Don't release, don't get released, don't release, don't get released. Okay, so ये जो पूरा काम है जो ये hormones का, this is how it is being happening. Understood this part बेटा? Any doubts बेटा? मैम इसमें से याद क्या रखना है? इसमें से आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स कि कब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पीक पे जाता है, कब फॉलिकल, कब एस्ट्रोजन, कब प्रोजेस्टेरॉन, कौन से फेज में किसका क्या राइज है, किसका क्या डाउनफॉल है, वो सब कुछ याद रखना है बेटा। Is this part is clear to you? Understood? See this. So menstruation, menstrual phase, proliferating secretory or luteal phase, that part is there. So see this कि किस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज डे 1, यूट्रस लाइनिंग जो है वो शेड होती है एंड इट विल बी कंटिन्यूड फॉर 3 to 5 days. Then follicular phase, matured egg follicle releases an egg from one of the ovaries and uterus starts preparation for another pregnancy. मतलब if it is there or not, अगर होता है तो प्रेगनेंसी के लिए। ovulatory phase, mid cycle phase, this is the phase which in which ovulation takes place, that means day 13 to day 17, किसी किसी में 12 to 16 लिखा होगा, it all depends. Okay, end of follicular phase along with the ovulation period defines the fertilization period, highly fertile period for the females if they are planning a baby. Then you have a luteal phase, post ovulation, जैसे ही ovulation खत्म हुआ, where the fate of corpus luteum is decided, उसके बाद corpus luteum का क्या होना है, that part is being decided by the ovary.
If fertilization occurs and pregnancy starts, and if fertilization does not occur, it marks the onset of another cycle. Is this part is clear to you? Got it? Okay. Any doubts? Any doubts, beta? नहीं. Fine. So see this, that ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, so see to this, once the sperms are through cervix when they are entering, okay, so they have both the probabilities with them, both the possibilities. जो स्पर्म्स हैं वो फिर इधर भी जाएंगे और वो स्पर्म्स जो हैं वो कुछ इधर भी जाएंगे. बोथ ऑफ देम विल ट्रैवल. स्पर्म डजंट नो कि किस साइड से ओवरी, कौन सी ओवरी फंक्शनल है और किसने ओवर रिलीज किया है, ठीक है. दे जस्ट मिस बाय चांस, दे आर मूविंग फर्दर. अच्छा, जितनी आगे बढ़ते हैं उतना ज़्यादा उनका स्ट्रगल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डाइंग ओवर देयर ओन. सो सी दिस, व्हेन ओवा इज समवेयर हियर, अगर रिलीज हुआ है, एंड इफ इट इज रीचेस समवेयर हियर, ओके, जब यहाँ पर ओवा होता है, this time if the sperm is reaching to this ova and it is getting fused, this is the best period to get the ova fused with the sperm. Okay, क्योंकि movement this ova, both of them will fuse, it will form a zygote, and zygote will be delivering over at this region. जैसे ही zygote यहाँ पर पहुंच जाएगा, endometrial walls are ready to hold it. ठीक है, अब endometrial wall को 9 months तक, मतलब we will not talk about months now, we will say 40 weeks, maximum 40 weeks तक signaling होता है कि you don't have to break, keep on, keep like this only, and okay, so you don't have to release the egg from your neck, so this particular region. So this is what it has to be do at the time of fertilization. This is how the fertilization will occur. और जब ये zygote यहाँ से जब move करता है, when it is moving like this to this region, at the same time it will start dividing. वो divide होना भी start हो जाता है इस movement के दौरान. So once okay, so this will be once it will start dividing. तो जब तक वो इस जगह पर पहुंचता है, तो there are few number of cells are already present in the zygote, and that decides the fate of the zygote over here. Those sperms जो इस तरफ गए, they will normally वो अपने आप degenerate हो जाएंगे. It will not be causing any issue for that. And the thing regarding this, that ki the ova is not being able to program if the system is not being proper, means अगर sperm जो है वो ओवा को ओवा यहाँ आ गया है और उसके बाद मिलता है, then also it will be fusing, then also it will be functioning, but this is the best stage. मतलब ये fallopian tube तक अगर sperm पहुंच जाता है, this is the best stage for the sperm and ova to get fused with each other. Is this part is clear to you, beta? Have you written this?
Yes, ma'am. Any doubts?